अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उमर जावेद कुरैशी है और आज हम कॉफ़ी विद गौहर के एक और एपिसोड के साथ हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका आजकल काफ़ी शोर भी है। तो अगली आवाज़ सुनेंगे आप गौहर साहब की। Assalamu alaikum and very good evening to all of you. This is Gohar Sharif once again with another episode of Coffee with Gohar. And tonight my guest is Squadron Leader retired Athar Sajid Khan, who was basically an aeronautical engineer responsible for the training of the pilots. And what he has gone through in his career and what he has been doing all along, we'll talk to him in detail. First of all, let's welcome him. Welcome to the show. Thank you very much. Thank you, Gaurav. Thank you very much. It's a pleasure to have you on the program, sir. आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया आपने. Thank you very much, sir. बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश. अच्छा जी, शुरू करेंगे हम अर्ली चाइल्डहुड से. चाइल्डहुड से शुरू करेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ स्कूलिंग हुई आपकी, और अर्ली चाइल्डहुड मेमोरी में क्या फॉन्ड मेमोरीज हैं आपकी या चैलेंजेस थे आपके, तो कुछ शेयर करें. वैसे तो मैं आप समझें कि मेरी पैदाइश कराची की है और कराची में एक स्कूल कहलाया करता था कैंट पब्लिक स्कूल, बड़ा पुराना. आजकल वहाँ अस्करी आई थिंक 3 बना हुआ है. अच्छा, बड़ा स्कूल हुआ करता था. एंड आई वाज देयर एंड मैं बेसिकली एक शरारती बच्चा हुआ करता था. तो वालिदैन ने somehow the other, a friend of my father, he said कि इसको बोर्डिंग स्कूल में डालो. तो मुझे इन्होंने पढ़ाई में मुनासिब था तो इन्होंने मुझे एबटाबाद पब्लिक स्कूल के लिए एग्जाम कराया और मैं पास हो गया. तो फ्रॉम क्लास 6 onwards, in 7th class I was in Abbottabad Public School. And it was a wonderful place. I stayed there, just about a year. And one of the best things which I enjoyed there was a very fine professor, a very well-known figure in Pakistan, Mr. Catchpole. And initially मैंने अंग्रेजी अपनी वहाँ पे सीखी उनसे. इसी दौरान में somehow the other, मतलब है कि I got an opportunity to appear for Cadet College Hassan Abdal. And from doing my 7th, after 7th, 8th onwards, I have been at Cadet College Hassan Abdal. वहाँ मैंने कोई तकरीबन 5 साल अपने पूरे किए and I did my FSC from there in pre-engineering. उसके बाद फिर Air Force के लिए अप्लाई कर दिया. वो भी यकीन माने कि I think it was more to do with luck that my father, took me one day to a selection center. He said, go and apply for this. Apply किया, engineering के अंदर हो गए, and from there onwards, just joined Air Force, did my aeronautical engineering, got my graduation in 1979. उसके बाद मेरी पोस्टिंग रही पेशावर में. पेशावर के बाद फिर मैं शार फैसल बेस यहाँ पर इंजीनियरिंग का वहाँ आया. Went back to Kamra. From Kamra, I got a deputation, a chance of going for deputation to Kuwait. कुवैत में एक छोटी सी जिसे सद्दाम ने फर्स्ट मतलब है कि कुवैत पे अटैक किया 1990. I happened to be there and happened to go through the crisis of going into imprisonment also for about 20 days while getting out from Zahu border. Stayed at Mosul and then came back, served again in the Air Force at Kamra base, and from there I took my voluntary retirement and joined Pakistan International Airlines. Pakistan International Airlines के अंदर I came as a senior trainer and have been doing pilot training there. और अभी इस वक्त आप समझें कि most of the students, most of the pilots in the airline have virtually gone out about 4 to 5, maybe about 500 some plus pilots. At least 350 or 400 must have gone through my training session one way or the other. तो ज़्यादा को जानता हूँ और बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा. और I got my retirement in 2015. From there, worked for a bank for some time as head of trading, and then doing my freelance training as a motivation speaker. ये मेरा एक background है और अब माशाल्लाह से I'll be touching 65 very soon, and would like to continue the way it is, and as a freelance trainer, in which most of the thing has to do a lot with motivation, attitude development, how we can look after our lives, how we can learn to be happy in whatever environment is going on, and what thought process does in our lives. So that has been my background. And lately जो एक ये में incident हुआ है उसके अंदर फिर I think
If that is the subject, then we can further proceed on जी that topic. जी पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा फॉर व्यूअर्स इंटरेस्ट कि आप जितना अरसा PIA से मुंसलिक रहे, यू आर एसोसिएटेड विद द पायलट्स ट्रेनिंग और ऑपरेशनल आप उनकी जितनी भी थे वो उसको देख रहे थे ट्रेनिंग्स को, तो उस वक्त आपको क्या लगा कि उस वक्त PIA के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे? क्योंकि एक ज़माने में हम एमिरेट्स को पायलट्स हम दे रहे थे, सिंगापुर एयरलाइन को पायलट्स हम दे रहे थे, मिडल ईस्ट की मोस्टली एयरलाइंस को सेटअप करने में PIA का बड़ा हाथ था। तो अब ये सडन डाउनफॉल क्या आ गया अचानक ऐसा कि वो जो वजीर हवाबाजी हैं, जो कि जिनको पता नहीं एविएशन के स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं आते, उन्होंने एक ऐसा धुआंधार बयान दाग दिया असेंबली में जिसकी वजह से बहुत इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है। तो ये जरा बताइएगा पहले तो उस वक्त का जब आप एज अ ट्रेनर वहाँ पे उनको ट्रेन कर रहे थे, तो क्या वो इंटरनेशनल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, SOPs सारे फॉलो हो रहे थे? जरा वहाँ से लेके चलिए बात को। देखिए, unfortunately when I joined, it was I left the Air Force in 1995 and February 1996 I joined the airline. मेरे ख्याल में वो ज़माना था जिस ज़माने में जो इनिशिएशन हुई इन अ मैनर जहाँ थोड़ी डाउनफॉल, कुछ सीनियर भी लोग थे और उनको भी मैं जानता था, उनका लेवल ऑफ कैलिबर वाज डिफरेंट। एंड व्हेन 1995-96 when the people had joined in, I think the political interference had started. Okay. And I could not, मैं एयरफोर्स से आया था, मैं मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स की बात किया करता था, एंड यहाँ पे ऑल्दो आई पर्सनली थिंक कि जो इंडक्शन उस जमाने में हुई है, मरहूम जो बेचारा जिस लड़की की बात होती है, who was the captain of this unfortunate aircraft, and he also happened to be a part of my student at that time. He had also joined in 1996. In 1996, good about 70 plus people had joined in, and there were about 4 classes which were going continuously on. And बहुत सारी सुनने में खबरें आया करती थी कि people used to say कि जी the modus of coming in had been compromised, और उसकी अब खबरें कुछ सामने भी आ रही हैं, and there were issues and the issues had started then. उससे पहले मेरे ख्याल में डेफिनेटली जो PIA का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिसके बारे में लोग बातें करते हैं, I think they were senior people, they were very nice people. ये नहीं कि ये लोग भी बुरे थे, जब काम करने को पड़ता है तो काम किया जाता है, और उसमें I personally think that compromise it had started. Okay. And sorry to say, I personally think कि चीजें एक डायरेक्शन में सेट इन हो गई थी, and PIA itself or airline itself, in spite of all these kind of checks and balances, it's very forgiving. Aircraft is extremely forgiving machine. इसको हम अंग्रेजी में प्लीज कहते हैं, it's a highly resilient machine. You try to push it, it will come back to normal. Okay. It will not misbehave. It will try to take in the errors. There's so much of automation and so much of resilience and standby systems. एक जमाना था, थोड़ी जिस जमाने में 3 systems as a backup होते थे. Over a period of time with technology and automation, there's still 2 systems which are basically there. हर system के backups हैं, और एक फेल होता है फिर दूसरा आता है, दूसरा फेल होता है तो फिर उसका मैनुअल आता है. इस तरीके से there's a complete system that the aircraft does not misbehave for nothing. And इसमें अडॉप्ट करता है, लोगों की ट्रेनिंग के इतने पैटर्न्स हैं, ग्राउंड ट्रेनिंग है, ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद फेजेस ऑफ ट्रेनिंग आप देखें कितनी ज्यादा है. ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद the person who has been cleared from ground training, जबकि जब आदमी नया ज्वाइन करता है उसकी जितनी भी मतलब आप समझेंगे ट्रेनिंग हुई भी हो, he yet still has to go through the basics. I was an aeronautical engineer with about 16 years of commission service, but when I joined the airline, I was made to go through the basics. Basic electricity, basic aerospace, basic structures, because there's no compromise. They say that you have not been in commercial aviation,
You have been in military aviation, so there's a difference. So when you come Okay. back, so your licenses are issued on the basis of the examinations what civil aviation takes. So in spite Okay. of having so much of experience, I yet had to go through the basics. So even the pilots who come with a couple of 100 hours or maybe more, they have to go through the basics. After doing the basics, they come on to the type. उस जमाने में जो basic type induction का जहाज था वो था Fokker Friendship F-27. Okay. ठीक So all ठीक of them, you know, they become first officers and they sit on the right seat. And अच्छा ये समझें कि right seat पे, although the man or the person who's sitting there is a certified pilot or equally qualified pilot, then the person sitting on the left, who's the captain. Both of them are ठीक equally certified, but one has more experience on the type and the other has less. Okay. So ठीक वो एक दफा जब एक राइट सीट पे होता है, पहले फोकर पे होता है, फिर वो 737 पे जाता है, फिर 737 से फिर वो एयरबस पे जाता था, एयरबस 300 हुआ करती थी, एयरबस 300 के बाद वो जंबो पे जाता है, या पे 777 आ Right. गया तो he would still remain on the right seat as a co-pilot, as a first Okay. officer. So he's virtually ठीक being trained. It almost takes about 10 to 12 to एक जमाना था 18 साल लगा करते थे आदमी को from Okay. right seat to come on the left seat as a captain. Okay. तो वो जबरदस्त एक पूरे ठीक प्रोसेस से आदमी गुजरता है. And I think aviation system doesn't give you any chances to commit mistakes. लेकिन मिस्टेक कहाँ Okay. होती है? मिस्टेक प्राइमरली इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब नेपोटिज्म आ जाती है, जब भाईचारा शुरू हो जाता है, जब एक दूसरे का लिहाज आ जाता है कि भाई मेरा आदमी आ रहा है, जरा ख्याल रखना. ठीक ये है होता है सिस्टम्स की ट्रेनिंग के अंदर. इंडक्शन Right. के अंदर कॉम्प्रोमाइज होना शुरू कर देती है. उसके बाद Right. जब ये चीज नर्चर करती है, और ये पिछले 25 साल 20 साल से ये मामला चलता रहा, एंड आई थिंक अभी भी इस अनफॉर्चुनेट एयरक्राफ्ट के अंदर अगर ये फकत 15-20 फुट से 50 फुट से ऊपर से निकल जाते तो शायद किसी को भी ना पता चलता. अगर पता भी चलता, एक माइनर एक एक इंक्वायरी होती, और आई मीन व्हाट आई हैव सीन दिस, प्रोबेबली चीजें हशप हो जाती कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, एंड नथिंग वुड हैव हैपेंड. सो इन स्पाइट ऑफ सच अ resilient system available, it took 25 years for small errors to combine into a story and end up into a catastrophe. मेरी जाती रही है. चीजें छोटी छोटी होती हैं लेकिन वो पाइल अप होती जाती हैं, लैप्सेस छोटे छोटे होते हैं, फिर वो ब्लंडर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जी. जो कंप्लायंस टू द सिस्टम है, जो कंप्लायंस टू द SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और जी. वो जो चेक लिस्ट है उसका फॉलो ना होना और मेंटेनेंस शेड्यूल का फॉलो ना होना, प्रोबेबली इट ऑल एड्स अप टू इट कि किस वक्त हमारी जो फ्लाइट है वो वर्दी है टू टेक ऑफ एंड व्हेन इट द प्लेन शुड बी ग्राउंडेड. तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या खत्म होते चले गए. हम तो एक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, पायलट्स ट्रेनिंग की, लेकिन चूंकि आपने इतना वक्त गुजारा उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर में, ऑपरेशंस आप देख रहे थे, लोगों को आप मिल रहे थे डेली बेसिस के ऊपर, तो उस वक्त क्या हमारी मेंटेनेंस भी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी चूंकि नेपोटिज्म आ गई थी, चूंकि सिफारिश आ गई थी, करबा परवरी आ गई थी, सियासत आ गई थी, तो वो हर चीज ही मेरे ख्याल शायद कॉम्प्रोमाइज हो रही थी उस वक्त. फिर अगर आप मुझसे मेरी जाती कंडीशन में या जाती पोजीशन में पूछेंगे, मैं ये समझता हूं कि टू क्वाइट सम एक्सटेंट यस. फिर क्या था, जब आपके पास फाइनेंशियल मतलब रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, आपके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ऑपरेशंस प्रेशर आता है, उसमें आप जहाज के पार्ट्स को कैनिबलाइज भी करते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, आपके जहाज कम होते हैं, आपको मतलब है कि फ्लाइट ज्यादा करनी पड़ रही होती हैं. और आई पर्सनली थिंक, जैसे कहते हैं ना कि एक नेपोटिज्म के अलावा एक सिस्टम की अपनी एक इंटेग्रिटी और एक ऑनेस्टी होती है. पीपल हैव टू स्टैंड अप एंड से सॉरी, दिस कैन नॉट टेक प्लेस, सॉरी this aircraft cannot go because of this reason. और जबकि पायलट कभी जहाज को मतलब है कि अगर कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में नहीं लेके जाता, और बॉर्डर लाइन केसेस, आई डोंट से फ्रॉम ऑपरेशन साइड बट मे बी फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड हो जाते हैं.
और जहां तक ये एक अजीब सी बात चल रही है जिसमें हमारे मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट के बारे में आता है, आप यकीन माने एज अ फेक लाइसेंस, I think I will always take a stand on this. एविएशन में लाइसेंस फेक नहीं हो सकता। लोग आप समझें कि मिनिमास के ऊपर हो सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल, लेकिन आप समझें कि जिस शख्स ने हर 6 महीने में जाके अपने आप को ग्राउंड ट्रेनिंग, ऑल्दो ग्राउंड ट्रेनिंग में जस्ट 1 या 2 दिन का रिफ्रेशर होता है, that he comes in, we expose him to couple of questions कि अच्छा ये बताओ तो क्या करोगे, जब ये प्रोसीजर होगा तो क्या करोगे, किस किताब को रेफर करोगे, कैसे रेफर करोगे, नई मॉडिफिकेशंस क्या आई हैं, नए प्रोसीजर्स क्या आए हैं। So they spend about a day at the ground training, and after that they are scheduled for simulator training. अच्छा, सिमुलेटर ट्रेनिंग में इनके अपने ही सीनियर पायलट्स होते हैं, जिनके कैप्टन होते हैं, बट दे हैव बीन क्लियर टू बिकम सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स। अच्छा, वो उनको फिर सिमुलेटर ट्रेनिंग, इट्स अ रीजनेबली एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। पाकिस्तान में तो सिमुलेटर्स अब हो गए काफी, जमाने में ये नहीं हुआ करते थे। दे ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वुड बुक सिमुलेटर्स, दे वुड गो इन देयर, और उस सिमुलेटर के अंदर ये सारी एक्सरसाइज एक्चुअल आपको कॉकपिट में आप बैठे होंगे, जब सिमुलेटर के आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि आप एक्चुअल एयरक्राफ्ट में हैं या फिर आप मतलब है कि सिमुलेटर में बैठे हुए। राइट, जबरदस्त। वो वहां से क्लियर होता है। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जब एक पायलट ही गोज इन, somebody would call in the instructor कि यार देखो ये मेरा दोस्त आ रहा है, इसका ख्याल रखना। Most of the time they would not do it, but when the systems become a part of it, then people become चलो ठीक है मैं देख लूंगा। वो एक्सरसाइजेस करवाता है, वो अगर एक एक्सरसाइज से नहीं कर पाता उसको दोबारा करवा देता है, तीसरी में उसकी एक एसबी लगने, अनसेटिस्फैक्टरी चीज आ जानी चाहिए, वो नहीं करते, बिकॉज ये हमारे कल्चर का सिस्टम हो गया है, और उस कल्चर की वजह से वो आदमी खिसकता रहता है and he keeps on going, and everybody knows that he's a weak case. He himself knows that I am a weak person. बाज़ वक़्त अल्लाह न करे, खुदा न करे, ये सिचुएशन आई जैसे ये मरहूम सज्जाद साहब ने continuously, he was being told that you are high, your speed is high, your altitude is high, but he kept on saying, he's showing his confidence, no, I'm comfortable. ये जायज नहीं। Overconfidence, can become fatal, and it did. तो ये इनके साथ बेचारों के साथ हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन है इस सिलसिले में। मुझे इतना मौका तो नहीं मिला इस सारे केस को स्टडी करने का, ना कोई वीडियोस देखने का। एक मेरे जहन में सवाल है कि जब प्लेन इतना नीचे आ गया था कि वो बेली लैंडिंग के लिए जा रहा था और उसके इंजन्स भी जमीन से टच कर गए, तो उस स्टेज पे जाके उसको दोबारा उठाने की क्या जरूरत थी? फिर बेली लैंडिंग करा क्यों नहीं दी उसने? मतलब जब आपने सारा डिसेंड कर लिया, सारा कुछ कर लिया। मैं पायलट नहीं हूँ ना, मैंने कोई पायलट्स की ट्रेनिंग अटेंड किया, लेकिन एज अ ले मैन मैं ये समझना चाहूंगा कि जब आप ले आए प्लेन को नीचे और वो इतना डिसेंड करके आप ले आए, वो उसके इंजन्स लग गए नीचे, ठीक है ना, उसका लैंडिंग गियर नहीं खुला, तो वहां से उठाने की क्या जरूरत थी? वहां से फिर डायरेक्ट आपने उठाया क्यों? आपने उधर लैंडिंग करा क्यों नहीं दी? देखें, ये इतना स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता है, एंड आई पर्सनली थिंक जैसे आप ये कहें कि थॉरोब्रेड पायलट और हाई एंड जो कप्तान होता, वो शायद अव्वल तो इस पोजीशन में आता नहीं, अगर आ भी गया तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑप्शन वाज बैठ जाते जहाज को। बट इट्स अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, दे डिसाइडेड टू प्रेस देयर टोगा इज टेक ऑफ गो राउंड स्विच। टेक ऑफ गो राउंड के अंदर इन्होंने टेक ऑफ गो राउंड ले लिया। अब सिंस आई एम नॉट माई सेल्फ अ पायलट, मैं शायद इस पोजीशन पे इतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट व्हेन आई टॉक टू माय कोलीग्स, व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स, a lot had to do with the ATC. Number one, when he was coming hot and high, the tower should have said go round. Go round means go back, come back again, align yourself, or go round करना
अब तो दुनिया में अब ये चीज कही जाती है, गो राउंड के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं करता कि आपने क्यों गो राउंड किया। पहले एक जमाने में था कि भाई आपने क्यों गो राउंड किया, क्या वजह थी, आप क्यों मतलब है क्या लाइन नहीं थे, जबकि इतनी फैसिलिटीज ग्राउंड पे मौजूद होती हैं। लेकिन अब तो कोई क्वेश्चन भी नहीं करता। You can just simply say, I decided to go around. I was not feeling comfortable. But this gentleman kept on saying, I am comfortable. So, number one, he should have gone around by himself. And I think he had made up his mind to go around. But it made his mind very, very late. Otherwise, the ATC should have told him, go around. अच्छा, go around कर भी लिया था, अब engine touch भी हो गए थे. You are absolutely right. One of the better option was to, दुनिया belly landing कर जाती है. belly landing के अंदर जहाज को डैमेज ज्यादा होता, लेकिन शायद इतनी कैजुअलिटीज ना होती. अगर आपने स्क्रैप थ्रू किया भी, अब और भी ऑप्शंस मौजूद थे. आप वहीं से जाके आप हाई राइट टर्न करते, लेफ्ट टर्न करते, वुड हैव कम बैक. एंड फ्रॉम जिस साइड पे आपने टच डाउन किया था, या जिस तरफ को आपने टच डाउन किया था, आप उसी साइड पे आके दोबारा लैंड कर सकते. He kept on following the ATC instructions. ATC ने भी मेरे ख्याल में ग्रेविटी को समझ तो लिया था, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दी, लंबा रूट दिया, जबकि बराबर में एक शार फैसल बेस है जिसके ऊपर से ही गुजरे. वहां पे भी ऐसे मौके पे तो यू जस्ट आस्क के जी मेडे आई एम मेकिंग अ लैंडिंग. आप जो भी आपको रनवे नजर आता है वहां टच डाउन कर देते, तो शायद इतना बुरा हाल ना होता. और वन ऑफ द रीजन वाज लेट डिसीजन मेकिंग. ये रही very unfortunate. और शायद वो उसमें वो रिफ्लेक्स एक्शन या वो उस वक्त उनका स्प्लिट सेकंड जो डिसीजन था वो शायद. लेकिन इतनी गौर साहब इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है. मुझे एक सीनियर मेरा एक दोस्त भी थे मेरे, वो जिस जमाने में फोकर में थे और हम कैडेट पायलट्स की तैयारी कराया करते थे, ऐसी कैडेट पायलट, ये लोग भी उनमें से आए थे. तो जब हम टेक्निकल ज्यादा कराते थे तो दिस वेरी वेरी एक्सपीरियंस पायलट, ही बिकेम द सिविल एविएशन instructor also, he was in the Air Force also. He used to take Athar, please understand, initially don't make them go through lot of technical things. We want monkeys. We want monkeys, and the monkeys means that they see a light, they see instructions, and they do a memory item checklist. They keep on moving around. Initially, you have to respond. Even there are certain memory items which you encounter the situation and you keep on repeating and doing those things. Right. जब आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है, चेकलिस्ट बाद में करते हैं. अब तो मेरे ख्याल मेमोरी आइटम्स भी कम हो गए. एक जमाने में जब मेमोरी आइटम ज्यादा हुआ करते थे, आपने मेमोरी वो एक्शन ले लिया करते थे, और उसमें जब कॉम्प्रोमाइज हुआ तो उसकी वजह से फिर ये चीजें आई हैं. This is what I think. जो इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गई एविएशन इंडस्ट्री में, और जो ऑटो पायलट पे लैंडिंग होती है, वो सारी चीजों के होते हुए भी हम क्यों इस किस्म की फैटल मिस्टेक्स करते हैं? एटीसी ने चलें गलत इंस्ट्रक्शंस दे दी, उसने ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को नहीं समझा, बट व्हाई कुडंट वी गेट सम सेकंड, कोई हमें इंडिकेटर मिल जाता, कोई और चीज से हमें पता चल जाता कि हमारी अलाइनमेंट टू द रनवे ठीक नहीं है, या वी आर नॉट रेडी टू लैंड. वो मतलब क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस था पायलट का? देखिए, वो तो सारी इंडिकेशंस होती हैं आपके पास. मतलब है कि EGPWS कहते हैं, जो बेसिकली ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम होता है, वो बता रहा होता है. अच्छा, बाय द वे, ऑटो पायलट, ऑटो लैंडिंग, ऑटो ब्रेकिंग, ऑटो लैंडिंग सब कुछ होती है, लेकिन उसके लिए कुछ क्लियरेंसेस चाहिए होती है. उनकी कैटेगरीज होती हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3. और वो डिपेंड करता है कि आपके रनवे पे वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं या नहीं है. जनरली आई डोंट नो, सिंस आई एम नॉट अ पायलट, आजकल यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं. 1000 फुट के बाद आप यू डिसएंगेज. ये 500 फुट में दे डिसएंगेज द ऑटो पायलट एंड दे गो फॉर मैनुअल लैंडिंग. तो उसके लिए आपके पास रनवे पे कैट 3 कहलाता है. कैट 3 की आपकी मतलब जहाज भी कैट 3 पास होना चाहिए. आपकी जो रनवे की तमाम फैसिलिटीज मौजूद है वो भी कैटेगरी 3 ए फील्ड की होनी चाहिए, और पायलट की भी कैट 3 की क्लियरेंस होनी चाहिए. ओके, गॉट इट. आई पर्सनली थिंक कराची में अभी
हमारे पास आई डाउट कि शायद लाहौर में एक हमारे पास है जिसमें आपके पास कैट 3 की, लेकिन अगर आपके रनवे पे कैट 3 है भी, कैटेगरी 3 फैसिलिटीज है भी, लेकिन अगर जहाज कैटेगरी 3 इक्विप नहीं है और पायलट कैटेगरी 3 ऑटो लैंडिंग के इक्विप नहीं है, तो आप लैंडिंग नहीं कर सकते। तो ये तीनों सर्टिफिकेशंस होती हैं, उसके बाद आप कंप्लीट ऑटो पायलट लैंडिंग करते हैं। जनरली पीआईए में ऑटो कंप्लीट ऑटो लैंडिंग नहीं होती। लैंडिंग के बाद ऑटो ब्रेकिंग तो जरूर होती है, लेकिन ऑटो लैंडिंग आई पर्सनली थिंक ऑपरेशन में अब क्या कैटेगरी है, या तो सिविल एविएशन वाले बता सकेंगे या ऑपरेशन पायलट बता सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि लाहौर में कैट 3 की सारी अप्रोच की जो फैसिलिटीज हैं वो वहां पे लाहौर के रनवे मौजूद हैं। मे भी कराची हो गया होगा, मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन देखिए साहब, एरर्स, ह्यूमन एरर, आप माने या ना माने, एविएशन की हिस्ट्री जो है वो ये बताती है कि जहाज बहुत ही रेजिलियंट मशीन है, जहाज मिसबिहेव नहीं करते। इक्विपमेंट की, इंस्ट्रूमेंट्स की, कंपोनेंट्स की इतनी टेस्टिंग होती है बिफोर द एयरक्राफ्ट रिलीज्ड बाय इंजीनियरिंग, though these components generally don't fail. Who fails? Humans fail. Human error. And इस वक्त भी दुनिया के जितने fatal accidents हैं उसमें to the tune of 89% to 94% of the fatal accidents have been due to human factor avoidable. ये लेकिन हाइंडसाइट में तो हर एक वाइज हो जाता है, लेकिन मशीन इट्स अ रिमार्केबल मशीन। दुनिया में अभी भी इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, मुझसे कोई कहे जहाज पे ट्रेवल करना है, आई वुड क्लोज माय आईज एंड आई वुड गो इन द एयरक्राफ्ट, बिकॉज आई हैव फेथ इन द एयरक्राफ्ट, आई हैव फेथ इन द सिस्टम, आई हैव अ फेथ इन द कैप्टन, इन द फर्स्ट ऑफिसर, कि ही विल नॉट मेक अ मिस्टेक। और अगर मिस्टेक होती भी है तो 10,000 आवर्स में, हम एयरफोर्स में क्या करते थे कि 10,000 आवर्स में अगर एक जहाज में कोई मसला हो जाए तो दैट्स एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो भी ह्यूमन फैक्टर भी होता है, कंपोनेंट फेलियर्स भी होते हैं, बट 10,000 आवर्स इज हेल लॉट ऑफ टाइम फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट। आई डोंट नो इस वक्त सिविल में क्या है या कमर्शियल एयरलाइन में क्या है। The rate of accidents is very very low. There are airlines जहाँ एक्सीडेंट्स ही वर्चुअली अब नहीं होते। एक जमाने में कहते हैं पैसिफिक का एक रिकॉर्ड था कि इनके एक्सीडेंट्स ही नहीं होते थे। अभी भी एक लिस्ट आई हुई थी, मेरे पास है नहीं। So there are airlines जिनके अंदर उन्होंने इतना इसको मेथोडिकल कर लिया है, इतना चीजों को चेक करते हैं। आप यकीन माने, इवन इन सऊदी एयरलाइन देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही गॉट ग्राउंडेड, ही लेफ्ट इट। मैंने से पूछा क्या हुआ था? You know what happened? There's an instruction that you are required to give instructions to your cabin crew once. उस केबिन क्रू ने लैंडिंग के ऊपर आते वक्त ग्राउंड का टेम्परेचर पूछ लिया कि सर लैंडिंग पे, रनवे पे यहाँ क्या टेम्परेचर है, एंड ही रिप्लाइड बैक। उसका जो कप्तान था उसने उससे कहा कि जनाब आपने ये जवाब क्यों दिया? He was supposed to remember that. अच्छा, उसने ये नहीं कहा, उसने फिर उसको कहा कि सर माफ कर दें, कोई बात नहीं। उसने कहा तुम माफ कर सकते हो, मैं माफ नहीं करूंगा। The gentleman virtually lost his job. He came in, then started working in Shaheen Airlines then. आप ये सोच लें कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस, यानी परसों मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, he is flying for Saudi these days. And he said कि अत्तर it's so right, because बाद वक्त जब रिफ्यूलिंग हो रही होती है तो उस वक्त रिफ्यूलिंग के वक्त आपका एक डोर खुला होता है या डोर लॉक नहीं होता पीछे का। मैंने ये किया कि जब मैं, मतलब मेरे जहाज पे मैंने देखा कि रिफ्यूलिंग अभी खत्म हुई है और पीछे जो मतलब एक केबिन क्रू का इंचार्ज है उसने दरवाजा बंद कर दिया। आई कॉल्ड हिम अप, कह रहा आपने दरवाजा क्यों बंद किया? उसने कहा सर आई गॉट दी, मुझे नीचे जो रिफ्यूलिंग वाला आदमी था उसने कहा इज रिफ्यूलिंग मैन, यू आर सपोज्ड टू लिसन टू रिफ्यूलिंग मैन, और व्हाट्स द प्रोसीजर? यू आर सपोज्ड टू लिसन टू द कैप्टन। उसने कहा आई एम सपोज्ड टू लिसन टू द कैप्टन। उसके ऊपर जो उसका ट्रेनिंग कप्तान सऊदी वाला आदमी था उसने कहा कि कप्तान आई लाइक इट, वेल डन, दिस इज द वे। एंड इवन द केबिन क्रू वाज अ सऊदी।
He said, this is how you have to show your initiative. कोई एक प्रोसीजर आप लेफ्ट से राइट नहीं कर सकते. आप यकीन करें कि there are couple of my friends who went to Saudi Arabia, and when they used to do a simulator, आप कम से कम 250 लाइटें और स्विचेस हैं कॉकपिट के अंदर. कहता है हर स्विच के ऊपर और हर लाइट पे, और उसमें लाइट में भी इंडिकेशन होती है, ग्रीन लाइट, एम्बर लाइट, व्हाइट लाइट और रेड लाइट. ये इंटेंसिटी बता रही होती है. उस हर सिचुएशन के ऊपर दे हैव टू मिनिमम 3 आंसर्स ऑन एवरी लाइट, एवरी स्विच. तो इतना कराते हैं कि एरर्स आपके पास दुनिया भर में अब खत्म हो चुके हैं. लेकिन फिर भी आप समझें कि मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जो हो रहा है, आई वुड कैटेगराइज कि आप तो किसी सिफारिश करने के ऊपर भी एक क्राइम होना चाहिए. मेरी रीडिंग ये है कि आपने ये सवाल किया कैसे, आपने मुझे इस बच्चे के लिए पूछा कैसे कि इसका इम्तिहान क्लियर होगा या नहीं होगा. मैं आपको बताता हूँ कि एज अ ट्रेनर बिफोर माय रिटायरमेंट, अगेन सिफारिश, कुछ लोग इंडक्ट हुए, उनको इतनी कोशिश की गई कि इनको, मैंने कहा देखो ये कोशिश मैंने जरूर की, मैंने कोशिश उनको पढ़ाने के लिए भी की, उनको समझाने के लिए भी की, 3 दफा कराई. अल्टीमेटली आई हैड टू टेल देम कि यार देखें, ये जो मखलूक है जो आई आपने भेजी हुई है, अल्लाह माफ करे, इसकी रिटेंशन नहीं है. ये इसके अंदर पर उगी नहीं सकते. अल्टीमेटली दे कुड नॉट, बट स्टिल आई नो कि चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं. आई थिंक अल्टीमेटली इट लीड्स टू अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस. दिस व्हाट हैपेंड हियर, मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज. मुझे ये बताइए साजिद साहब कि जब एक पूरा सिस्टम का, अगर मैं कहूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज था या वो कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रहा था या पूरे सिस्टम का फेलियर था, तो ये असेंबली में बयान देने की क्या जरूरत थी कि हमारे पायलट्स जो हैं वो 30% जो हैं वो फेक लाइसेंस पे जहाज उड़ा रहे हैं. मतलब आपने पूरी दुनिया को नर्वस कर दिया. जहां जहां पाकिस्तान एयरलाइन का तैयारा जाता है, प्लेन जाता है, उसमें देखें पाकिस्तानी तो सिर्फ ट्रैवल नहीं करते, सारी दुनिया के लोग उसमें ट्रैवल करते हैं. हर जगह दुनिया में PIA की फ्लाइट जाती है. तो आपने हर जगह पे अपने मुल्क की बदनामी करा दी इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बयान देके. आप ये समझते हैं कि आप सॉरी जी, मेरा ये कहना है कि जी कि उनका ये बयान जिम्मेदाराना था या गैर जिम्मेदाराना था उनका? देखिए, मेरे ख्याल में जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनको डेटा कोई और देता है, और इस तमाम के अंदर आई पर्सनली थिंक सिविल एविएशन हैज टू टेक द ब्रंट. सिविल एविएशन आर द रेगुलेटर्स. अब आप ये सोच सकते हैं, यकीन मानने कि व्हेन यू गो अराउंड टुडे इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस, the kind of people who are sitting there, आपको शर्मिंदगी होती है. मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एज अ ट्रेनर जाता हूँ, आई विल नॉट टेक नेम, 20 ग्रेड का अफसर बैठा हुआ है सर. व्हेन यू टॉक टू देम आपको अफसोस होता है. ये सिवाय नेपोटिज्म, सिवाय मेरिट को खत्म करके कि जी ये इस इलाके के लोग हैं, ये इस इलाके के लोग हैं, और सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दिस व्हाट हैपेंस. तो पॉलिटिशियंस इस किस्म की ये चीजें देते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस को डेटा कहां से आया? पूरा निजाम आपका क्लर्क्स चला रहे हैं. क्लर्क ने एक लिस्ट बना दी. मुझे अभी सिविल एविएशन में आज से 1.5-2 साल पहले कोई एक ट्रेनिंग असाइनमेंट मिलने वाला था, वो अभी जाके आज नवंबर में लास्ट में हुआ. वो भी उसमें जो मुझे लिस्टें दी गई उनमें कोई 22 लोगों के नाम थे, इनकी ट्रेनिंग होनी है. क्यों ट्रेनिंग इनकी होनी है? इस वजह से कि ये सिविल एविएशन का सिस्टम खराब हुआ है. यकीन माने 22 थे या 40 लोग थे. उन 40 में से आधे ज्यादा वो थे जो रिटायर होने वाले थे. कुछ लोग थे जो डॉक्टर ने साइकोलॉजिकली उनको डिटरमिन कर दिया था कि दे आर साइकोलॉजिकली नॉट वेल, दे आर सिक. बाकी माली और मतलब है कि लो लेवल के बेचारे लोग थे. मैंने कहा इनकी लिस्टें क्यों दे रहे हो मुझे? आई थिंक आज भी मेरे पास वो लिस्टें मौजूद हैं. यू डोंट नो वेयर टू कैच यू प्रॉब्लम ऑन. आपके सबसे पहले जाके नीचे वाले आदमी को पकड़ते हैं, और ये भी लिस्ट इसी तरीके से स्नीक करके ऊपर आई है. इसका इशू क्या है सर? मैंने आपसे अर्ज किया कि फेक पायलट का जहाज में बैठ ही नहीं सकता. वीक पायलट बैठ सकता है,
फेक नहीं हो सकता वो, उसके प्रोसेस सारे पूरे होंगे, उसको किसी ना किसी ने चेक किया होगा, चाचे मामे ही नहीं चेक किया होगा लेकिन चेक किया होगा और एक हद तक चेक करके उसको पुश किया होगा आगे। और वीक केसेस होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, हमारे यहाँ काफी होते होंगे। अब कहानी क्या है सर? कहानी यह है कि ये कहानी को पिछले मेरे ख्याल में 2020 चल रहा है ना सर, मेरे ख्याल में ये 2014-2015 की कहानी है कि आपका एग्जामिनेशन सिस्टम ALTP जिसे कहते हैं, ये वो चीज होती है कि जब एक आदमी 10-12-15 साल फर्स्ट ऑफिसर बना रहता है तो उसको राइट सीट से लेफ्ट पे आने के लिए उसको एक इम्तिहान क्लियर, उसको एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस कहते हैं। वो एक ग्राउंड टेस्ट होता है। उस ग्राउंड टेस्ट के लिए दुनिया भर में डेटा बैंक है। पहले ये हुआ करता था, जो एजेंसीज को देख रही थी, जो हमारे यहाँ चल रहा था सिस्टम, वो था FAA, फेडरल एविएशन अथॉरिटी, विच इज प्राइमरीली अमेरिकन बेस्ड सिस्टम्स। उसके बाद जब से अब यूरोपियन सिस्टम में जाना शुरू हुए, उसके अंदर एक नया सिस्टम आया, JAR, जॉइंट एविएशन रेगुलेशंस। जॉइंट रेगुलेशंस के अलावा एक और चीज आई, इसको कहते हैं IASA, वो यूरोपियन रेगुलेशंस आई सर। अब इन्होंने ये किया कि सिंस FAA साइड ट्रैक हो गया, यूरोपियंस हैड टेकन ओवर, तो उनका डेटा बैंक को समझ नहीं आई थी क्या करें। इन्होंने जार के, इन्होंने IASA के, इन्होंने FAA के दुनिया भर के क्वेश्चंस उठाए, उनको उठा के कोई 3-3.5 या पता नहीं 35,000 है या 3-3.5 क्वेश्चंस है, उनका एक डेटा बैंक बनाया और डेटा बैंक बन के उसको उसकी फीडिंग के अंदर, उसकी एनालिसिस के अंदर, उसकी सेग्रीगेशन के अंदर मल्टीपल एरर्स। अब वो लोगों को समझ नहीं आता था कि इतनी सीनियोरिटी के बाद, इतनी फ्लाइंग करने के बाद, इतना जानने के बाद आपको 30,000 क्वेश्चंस एक CD में डाल के दे दिए जाए कि इससे तैयारी कर लो, उसके बावजूद एरर। ये जो लोगों की लिस्ट है, many of them are my students and when I look at them I get astonished। इतने बेहतरीन पायलट्स हैं, इतने बेहतरीन लड़के हैं, इतने बेहतरीन फ्लायर्स हैं, individuals, human beings, I can name many of them. I have talked to so many. What is fake license? What is fake degree? मैं मानता हूं कि इस दुनिया में ये मामला चलते रहे। ब्रिटिश सिविल एविएशन का आप कानून उठाएं पुराना, उसमें कहता है पायलट या फिर एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अर्ली लेट 60s तक you should be 16 years of age and you should know how to read and write English. That's it. 8वीं क्लास भी आपने पढ़ी हो तो काफी है। बाकी सारी अथॉरिटी जो होती है वो एविएशन खुद देती है, उसको बेसिक से पढ़ाते हैं, हर लेवल पे चेक करते हैं और एक नहीं 20 साल 15 साल लगते हैं आदमी को राइट सीट से लेफ्ट सीट पे आने के लिए। हर 6 महीने उसका टेस्ट होता है। हर ग्राउंड इंजीनियर जब एक टेक्नीशियन जब इंजीनियर बनता है तो जिस जहाज पे जाता है उसका कोर्स करता है, वो एक एक सिस्टम का कोर्स करता है, जो मॉडिफिकेशन आती है उसका कोर्स करता है, फिर जाके उसको बाय हैंड करता है, किसी के सुपरविजन में करता है, उसका बाकायदा लिखा जाता है, उसका कार्ड बनता है। वो आदमी देखता है कि मेरे सामने इसने काम किया है, मेरे सामने ये लिखा है, फिर जाके उसको लाइसेंस दिया जाता है। तो द सिस्टम इज वेरी रोबस्ट, बी इट इंजीनियरिंग, बी इट फ्लाइंग। लेकिन जब आपके रिश्तेदार होंगे बीच में, सिस्टम में भाईचारा होगा, तो सिस्टम जितना भी स्ट्रांग हो, you will end up one day like this, and this what is happening. There is nothing as fake licenses. इसको नहीं कहना चाहिए था, सिस्टम को समझना चाहिए था। एक क्वेश्चन डेटा बैंक है, उस क्वेश्चन डेटा बैंक के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। उन मल्टीपल प्रॉब्लम्स में जब एक आदमी अब आपने क्या, लोग रट्टा लगा के जाते थे कि जी इस वाले इसकी चॉइस नंबर D है, इसकी C है। They would not make it through the logic. It is a regulator which has to answer why this data bank was there. Why? मैं दुनिया से कहता हूं कि भाई पूरी किताबों को तुम उनको पढ़ने की बजाय क्वेश्चन डेटा बैंक में ट्रांसफर कर दो, और वो आदमी पढ़ के जाता है, वो कर लेता है। आप फेल किसी को भी कर सकते हैं। उसके साथ मैं अभी भी गारंटी देता हूं कि यही टेस्ट पेपर इस वक्त दुनिया के किसी
कप्तान बनने वाले को ATPL के लिए दे दें, उसमें से अगर 50% 30% ना फेल करें तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। ये PIA का मसला नहीं है, ये दुनिया भर से कोई कप्तान ले आए सर, आप कोई पायलट ले आए 12, 15, 18 साल की नौकरी वाला, और उसके सामने उसको डेटा बैंक के सामने बिठा दें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सामने आते रहे, और वो मल्टीपल चॉइस के जो जवाब देगा उसमें से 30% ना फेल कर जाएं तो मेरा नाम आप चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट द पायलट्स, इट इज द सिस्टम। वो देखा जाए कि व्हाई पीपल आर सो हेडस्ट्रॉन्ग, व्हाई पीपल आर एडमेंट कि जी नहीं है सिस्टम होगा तो हम ही बनाएंगे। वो पुलिस वाला थानेदार खड़ा, आपको याद है ना कि वो एक चौकीदार बाहर बैठा हुआ है, दुनिया अंदर जा रही है, बाहर लिखा हुआ है अंदर जाने की इजाजत नहीं है बगैर इजाजत के। एक आदमी पूछ लिया मैं अंदर जा सकता हूँ, उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं जा सकते। उसने कहा आप क्यों जाते हैं? उसने कहा लिखा हुआ सामने आप नहीं जा सकते। उसने कहा ये जो जा रहे हो कहना मुझसे पूछ थोड़ी रहे, तो जो आप पूछे गए तो मारे गए। तो आप जब अथॉरिटी को आपने कहा कि भाई ये मामला आप चैलेंज करें, वो मानने का तैयार नहीं है एविएशन, आपकी सिविल एविएशन, कि वी हैव अ प्रॉब्लम। ह्यूमन सिस्टम्स हैव प्रॉब्लम्स बट दे मस्ट लिसन टू राइट। और ये अच्छा नेपोटिज्म मुझे ये और बताइए, ब्यूरोक्रेसी, इसने मेरे ख्याल में तबाही मचाई हमारी। जी बिल्कुल बॉस। सही है। अच्छा जी मुझे ये बताइए कि अब जो हो गया वो बयान तो इन्होंने दे दिया, और उसके रिपरकशंस के तौर पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने एयरलाइंस को, हमारी जो है उसको यूरोपियन एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है डिनाई कर दिया एक्सेस, और यूके में भी उन्होंने डिनाई कर दिया उनको कि वो हमारी एयरलाइन जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल वो नहीं जा सकती। तो ये अब इसका हल क्या होगा? फिर दोबारा से कैसे वो इजाजत मिलेगी? कब वो जा देखिए सकेंगे? ये तो मानने वाली बात है सर गौर भाई कि आजकल दुनिया में डेटा रिकॉर्डिंग जो मतलब सामने नजर आ रहा है, जो फ्लाइट डेटा का रिकॉर्ड पहले बाद में आया करता था, ATC की रिकॉर्डिंग्स बाद में आया करती थी, इधर जहाज वो लाइव चल रही होती हैं, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लाइव बता रही होती हैं। आप जहां खड़े हुए हैं, आप सिर्फ आपने अपना मोबाइल जो है उस ऐप को लेके उस जहाज की डायरेक्शन जहां आप खड़े वहां से आपने लेना है, वो आपको ये बता देगा ये कौन सी फ्लाइट है, ये क्या नंबर है, कहाँ से उड़ी है, किस ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रही है। सो मच सो कि आपके जहाज का जो इंस्ट्रूमेंट का डेटा होता है वो कंपनियों के अंदर मॉनिटर हो रहा होता है। हमारा एक जहाज जा रहा था एंड इट वाज गोइंग टुवर्ड्स रशिया, जहां उसको मेरे ख्याल में ईरान के ऊपर बताया गया इस जहाज का ये इंजन जो है, इसके ये इंजन में ये वाइब्रेशन आ रही है। ये सियाटल से जवाब आया कि इस जहाज को देखें, इसके इंजन में वाइब्रेशन है। कप्तान स्टिल कंटिन्यू, उसने परमिशन ली लैंड की, उसको परमिशन नहीं दी गई। जहाज आके लैंड किया, उसके इंजन डाउन हुआ और वो जहाज वहां पे मेरे ख्याल में शायद 15 दिन खड़ा रहा। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की इन्हें लॉस किया। तो मैं बता रहा हूँ कि अब दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अगर अभी भी आप अपना केस बना के एक काम कर लें, आप इन सारे के सारे कप्तानों को आप उनसे कहें कि दुनिया के किसी स्टैंडर्ड में जाके इनको चेक करा लो, फॉरगेट अबाउट सिविल एविएशन। आप इनको जाके सऊदीया में चेक करा लें, आप इनको जाके इनको टाइम दें, एक महीना टाइम दें, और इनसे कहें कि आप दुनिया की सबसे अच्छी कौन सी सिस्टम है ATPL के लाइसेंस के लिए, कोई यूरोपियन कंट्री बुला लें, आपके हम आपको भेजते हैं, इनकी इम्तिहान ले लें आप। अगर इनमें से 80% ना क्लियर कर लें तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। मोस्ट ऑफ देम आर गुड, and with this result you should go back to those countries that all these people have been now cleared as per your system. So this issue of fake license has been misreported, mismanaged, and I think we withdraw our cases against them. उसके बाद और देखा जाएगा कि जी क्या कौन किस पर। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में मसाइल नहीं है, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि सिविल एविएशन में मसाइल नहीं है, लेकिन आप ना किसी इदारे को स्टिग्मेटाइज कर सकते हैं, ना आप प्राइमरीली जो है किसी एयरलाइन को, ना आप उसके पायलट्स की जिंदगी स्टिग्मेटाइज करके खराब कर सकते हैं। द इशू इज आप एक थर्ड पार्टी बुलाएं, थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं पायलट्स का, वरना आपका सिविल एविएशन का लाइसेंस तो डेफिनेटली अंडर क्वेश्चन आएंगे। सिविल एविएशन में ये सिक्का शाही लोगों ने बनाई हुई है वो अंडर क्वेश्चन आएगी। आपकी PIA की मैनेजमेंट में लोग दिखाना ही चाहते हैं, एक सिस्टम कहलाता है उसको हम कहते हैं SMS इज सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। आज तक आपने इसको लागू नहीं किया। ये वो सिस्टम है कि हर बात एक अगर आपके मुंह से गलत बात निकल जाएगी
तो वो रिकॉर्ड होगी, वो इन्वेस्टिगेट होगी, वो ब्लेम नहीं करेंगे आपके सिस्टम में किसी को. द ब्यूटी इज दिस दैट एसएमएस डज नॉट ब्लेम एनीबडी. इवन जहाज भी क्रैश हो जाएगा, कहेंगे नहीं नहीं, ये बताओ कि इदारे में कौन सा ऐसा कसूर था कि ये कप्तान यहां तक पहुंचा, किसने इसका टेस्ट लिया, कौन कौन लोग थे वो टेस्ट लिए, वो टेस्ट को इंस्ट्रक्टर कैसे बना जो वहां पहुंचा हुआ था. सो दैट इज अ रूट कॉज एनालिसिस. ऐसे रूट कॉज को पकड़ता है एसएमएस सिस्टम कि अगर एक स्क्रू सही नहीं लगा, अगर एक चीज सही नहीं हुई, एक इंसिडेंट का रिपोर्ट होना होता है और फिर उसकी फुल इंक्वायरी होती है. द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज दैट नोबडी इज ब्लेम्ड. The system takes the responsibility why it happened and how it should not occur again. हमको कैसे मेजर लेने हैं? आपको पता है जिस जमाने में एक नया जहाज निकला था उसको कहते थे F-14 टॉमकैट. F-14 टॉमकैट मुझे याद पड़ता है, ये अर्ली 80s की कहानी है. ये बेतहाशा जहाज ईरान ने उस जमाने में लिए थे. तो एक सेनेट में क्वेश्चन आया, यूएस सेनेट के अंदर, कि ये इतने $14 मिलियन का मेरे ख्याल में उस जमाने में जहाज था, वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, कि ये 14-15 मिलियन डॉलर का ये एयरक्राफ्ट है, तो हम ये एक मैट्रिक पास लड़का जो वहां बैठा उसका टेक्नीशियंस के हवाले कैसे कर सकते हैं. यू नो, दे वेंट इनटू डिटेल्स एंड दे रियलाइज कि यस, कुछ मिस्टेक्स हुए वहां पे. उसके बाद जो मैनुअल्स बने वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव थे. अभी कभी मौका मिले आप अमेरिका के जो टेक्निकल मैनुअल्स हैं उनको देख लें. जब उनको मैनुअल्स को मैं देखता हूँ, F-16 के मैनुअल्स को देखता था, मैं कहता था यार ये गधों के लिए बनाए हुए हैं. They literally said yes. आपको याद है अभी भी एक सीरीज चलाती है, डमी सीरीज कहलाती है, हर सिस्टम के लिए डमी, अलजेब्रा फॉर डमीज, फ्लाइंग फॉर डमीज, मैथमेटिक्स फॉर डमीज. वो मैनुअल बनते हैं फॉर डमीज. वो डमी उसको इस्तेमाल कर सकता है. उसमें एक तस्वीरें बनी होती हैं कि एक तस्वीर से स्क्रू निकालना है तो कहाँ रखना है स्क्रू को, कहाँ से उठाना है, कितना डालना है, कितनी टॉर्क देनी है, कब उसको क्लोज करना है, कहाँ वायर लॉकिंग करनी है उसकी. ये टेक्नीशियन का, यही पायलट्स के लिए भी है. पायलट्स वर्चुअली डोंट फ्लाई एयरक्राफ्ट एनीमोर. इट इज द ऑटो पायलट व्हिच फ्लाइज. हर चीज लुक्ड आफ्टर है. तो मैं लोगों से कहता हूं कि आपको जो इतना पैसा मिलता है, आपको पैसा इसलिए मिलता है एज अ पायलट बिकॉज यू नीड टू बी अलर्ट. 40% ऑफ माय ट्रेनिंग यूज्ड टू बी ऑन द फिजिकल फिटनेस. अपनी डाइट का ख्याल रखो, अपनी सोच का ख्याल रखो, अपने आप को अलर्ट रखो. मुझे तो एक्चुअली परेशानी होती थी जब मैं किसी आदमी को ज्यादा सोचता हुआ देखता था. ये वो प्रोफेशन, इसमें ज्यादा सोचना नहीं होता. You have to be a happy-go-lucky guy. You have to be alert. What is going on is in life. When he's in the cockpit, he doesn't have to think about his family. He doesn't have to talk about. अब यहाँ हुआ है कि मैंने लोगों को देखा है सर कॉकपिट में बैठ के बिजनेस की बातें करते. It is a crime. Right. It's a crime. Right. मेरे पास इंस्ट्रक्टर्स के मैनुअल्स हैं जो मतलब है कि एक जमाने में पायलट बन के कप्तान बनने के बाद जब आप कमांड ट्रेनिंग में जाते हैं, वो कहता है कि आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने आपस में. जो इंसिडेंट हो रहा है, जो सामने आप फ्लाई कर रहे हैं, तो आपने सोचना है कि इस वक्त ये यहाँ पे बादल मुझे नजर आ रहा है, ये विंड कंडीशन है, इस वक्त अगर मेरा इंजन फेल हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए. वो कहता ही है कि आप उसको पहले अपने जहन में विजुअलाइज करें, उसका सोल्यूशन निकालें, किताबों से उसका रेफरेंस निकालें, फिर अपने पार्टनर से पूछें कि सर अगर इस वक्त हमारे जहाज में when you on a long flight when you have nothing to do, you know what we should do, then listen to him and then listen to him and then share कि sir should we not have a look कि देखें किताब क्या कह रही है. So even when you are sitting and doing nothing, you are learning. ये वो कल्चर है जो over a period of time deteriorate हो गया है. आप दुनिया भर की गपशप मार रहे हैं, आप $50 की बातें कर रहे हैं कि जी डॉलर फलाएं, वो फलाएं, ये यहाँ है. You know, you are not supposed, you are on your duty. तो ये सिचुएशन दुनिया में इमर्ज की हैं. ये जो मटेरियलिज्म है इसने तबाही मचाई है दुनिया भर में, और वीकनेसेस जरूर होती हैं. लेकिन लेट मी टेल यू कि लोग मेहनत भी बहुत करते हैं, अपने आप को करंट भी रखते हैं और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं. लेकिन वो कहते हैं ना कि एरर्स जब मल्टीप्लाई कर जाएं और हर चीज when everything starts going wrong, probably here everything starts going wrong. The captain, the ATC, the weather,
वेदर तो खैर कुछ भी नहीं था. अप्रोच रमजान के अंदर फिर रोजा आप जहाज में फ्लाई करते हुए आप रोजा रखना इज अ क्राइम. You are medically not safe with keep fasting and flying. नहीं करने देते दुनिया, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं होती, आपका रिस्पॉन्स खराब हो जाता है. एंड वन ऑफ द रीजंस प्रॉब्ली इज दैट बोथ ऑफ देम वर फास्टिंग. They were having, at that point, low sugar levels. वो alertness नहीं थी जो होनी चाहिए थी. They kept on missing things, and this what happened. मेरी जाती रही है. I am not, basically a flyer, but since I have been associated with training for a very long time, तो मेरी ये इस वक्त राय है कि शायद very, very definitely it could have been avoided. But we don't blame pilots for this. जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच सर. आप जो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आप शामिल हुए इस कॉफी विद गौहर में on a very different topic. Normally I do most of the time inspirational talk and motivational talk, and today I was with someone who not only talks about motivation but has lived all his life inspiring people and grooming people. I wish you all the best, sir, and wish Thank you. लेकिन यार मेरी एक ऑब्जर्वेशन है गौहर साहब जी. कॉफी विद गौहर के अंदर you should ensure that the other person should bring his cup of coffee and he should sit with you and also have a cup of coffee. But I think it was very nice. It has always been very encouraging whenever I have interacted with you. And I think I find a wonderful, human being in you. I have attended your talks. We have been together also. And it's always very, very encouraging. मुझे बहुत खुशी हुई. It has definitely been pleasure, has always been mine whenever I have been with you, and same here today. It's indeed a great thing. I hope कि शायद मैं अपने पॉइंट लोगों को कुछ ना कुछ समझा सका हूँ या बता सका हूँ. If there are some gaps, I think since I'm not an operational pilot, तो उनमें बहुत सी चीजें मैं नहीं कह सकता था, लेकिन मुझे अगर कहीं फिंगर पॉइंट करना पड़ेगी वो मैं कहूँगा कि भाईचारा and nepotism, inefficiency, compromises, they have to finish in this country. Professionalism has to take place. Meritocracy has to come up. बहुत हो गया. इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादती हो गई. आपने इनकॉम्पिटेंस को कहां से कहां पहुंचा दिया. अभी तो एक जहाज गया है. अल्लाह ना करे इसकी वजह से हम कितने नुकसानात उठा रहे हैं, कितनी जगहों पे आंखें बंद कर रहे हैं, मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं. मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात का शायद अगर इदराक है तो अच्छी बात है. अगर नहीं इदराक है और हम अभी तक सिर्फ अपने पर्सनल सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, आई थिंक अल्लाह ना करे जब चीजें डूबेंगी तो हमारे घर को भी साथ लेके डूबेंगी, हमारे खानदानों को भी साथ लेके डूबेंगी. उसका अंजाम अच्छा. मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ और दुआ करता हूँ कि इस किस्म के अवेयरनेस सेशंस होते रहें, लोग बातचीत करते रहें, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते रहें और अपने नीचे वो काम ना होने दें जिनको वो सही नहीं समझते. ऊपर की फिक्र ना करें. दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. आपसे वो जरूर अल्लाह पूछेगा कि आपने ये किया तो क्या किया, ऊपर जदारी क्या कर रहा था या और लोग क्या कर रहे थे. आई डोंट केयर. तो देखने वाले देखने, वो रिस्पॉन्सिबल है. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. लेकिन बिलो मी इट शुड नॉट हैपन. एटलीस्ट वी शुड ट्राई आवर बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. Not under my watch. Not under my watch. That is wonderful. Underlying. Not under my watch. Definitely, ji. Thank you very much, sir. It was a pleasure once again. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thank you. So nice. So nice. Allah. Umar J. Qureshi, thank you very much for the backstage facilitation. Thank you very much. Okay, sir. Thank you very much. उमर साहब मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया. बहुत नवाज़िश.